الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھنا یہ فرشتوں کا سنت ہے، یہ نبیوں کا سنت ہے، اور درود پاک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان میرے محبوب پر کثیر تعداد میں درود پاک پڑھتا ہے، اگر کوئی انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے، یعنی صبح شام اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے اگر وہ درود پاک کا ورد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کی درود پڑھنے کی برکت سے ہم ان کے قبر میں روشنی کے انتظامات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ درود پاک کی فضیلت ہے۔ درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی درود پڑھنے والے پر، یعنی ان کے قبر میں اللہ تعالیٰ روشنی کا انتظامات کر دیتا ہے۔ حضرات، میں آپ کو ایک تھوڑا سا مثال دے رہا ہوں۔ اگر آپ کوئی گھر بناتے ہیں، اس گھر کے اندر آپ اکیلے تنہا محسوس کرتے ہیں، یعنی گھر میں اکیلا پن گزارتے، اکیلے رہتے ہیں۔ اگر لائٹ ہے تو آپ کو بہت آنند آئے گا، آپ صحیح ڈھنگ سے اس میں زندگی گزارتے ہوں گے، لیکن جیسے لائٹ کٹ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت آپ ہو یا آپ کے بچے ہو یا گھر کے کوئی سدس، ایک آدمی گھر کے اندر ہو، عجیب سا محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ چاہتا جتنا جلد ہو سکے میرے کمرے میں اجالا آ جائے، میرے کمرے میں روشنی آ جائے۔ یقیناً یہ دنیا کی بات ہے۔ اگر دنیا میں ہم لوگ اپنے قبر میں، اگر دنیا میں ہم لوگ اپنے گھر میں روشنی نہیں رہتی ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، تمنا کرتے ہیں کتنا جلد لائٹ آ جائے تاکہ میرے گھر کو روشن فرما دے۔ یہ میرا آپ کا سوچ ہے، لیکن مرنا سب کو ہے، قبر کی منزل طے سب کو کرنا ہے، قبر میں سب کو جانا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ بابا آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہی تک موجود نہیں۔ آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے، آتے گئے، ایک ایک کر کے جاتے گئے، معلوم کیا چلا؟ دنیا میں جو بھی آیا ہے، آیا ضرور ہے، لیکن ان کو یہاں سے جانا بھی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ اسے اپنا گھر آ جانا ہے۔ یعنی یہ دنیا ہمارے لیے، آپ کے لیے اور 2-4 دن کی زندگی ہے، یہ 2-4 دن کی زندگی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اس دنیا کے لیے ہم مرتے ہیں، اس دنیا کے لیے ہم تڑپتے ہیں، اپنے خاندان کے لیے مرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے مرتے ہیں، زمین و جائیداد کے لیے مرتے ہیں۔ پر ایک بات کہتے ہیں، عمرے دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن تو آرزو میں کٹ گئے، تو انتظار میں ہم پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہو گئے، اور ہونے کے بعد ہم لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں، اگر کوئی عالم دین آپ کے دربار میں آ جائے، آپ کے قریب آ جائے، آپ سے کہیں گے چچا نماز پڑھا جائے، چچا نماز پڑھیے، آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا کرے؟ کبھی تو پاؤں میں درد ہوتا ہے، کبھی کان میں درد ہوتا ہے، کبھی سر چکراتا ہے، تندرست نہیں رہتا ہوں، ہمیشہ بیمار رہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت عالم دین آپ سے کہتے ہیں چچا نماز پڑھیے، نماز میں برکتیں ہیں، نماز میں رحمتیں ہیں، نماز میں کامیابی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے، آپ سے خدا بھی راضی رہے گا، خدا کے نبی بھی راضی ہو جائے۔ پھر
मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हिला वाला करने लगते हैं। अगर कोई नौजवान के पास कोई आलिम दीन चले गए, बाबू आप नमाज पढ़ो, बड़े भाई आप नमाज पढ़ो, मेरे दोस्त तुम नमाज पढ़ो, वो कहेगा हजरत क्या करो, अभी मैं छोटा सा बच्चा हूँ, अब वक्त आएगा तो नमाज पढ़ूंगा। जब वो जवानी के दहलीज पे आता है, अब उनसे कहा जाता है बाबू तुम नमाज पढ़ो, मेरे दोस्त तुम नमाज पढ़ो, मेरे भाई तुम नमाज पढ़ो। वो नौजवान कहता है हजरत क्या करो, वक्त नहीं मिलता है, कमाने के लिए चले जाता हूँ, रोजी रोटी के लिए चले जाता हूँ, अगर नहीं कमाऊंगा मेरी माँ की देख रेख कौन करेगा, अगर मैं नहीं कमाऊंगा मेरे खानदान को कौन पालेगा, मेरे खानदान को परवरिश कौन करेगा, इंशाअल्लाह जरूर पढ़ूंगा। फिर आलिम दीन उनसे जब उनकी उम्र और ढलने लगता है, जवानी के दहलीज को पार करता है, जब जवानी के दहलीज को पार किया, अब जब उनकी शादियां हो जाती है, उनके बाद फिर से कहा जाता है बाबू अब तो नमाज पढ़ो, मेरे दोस्त अब तो नमाज पढ़ो, मेरे भाई अब तो नमाज पढ़ो। लेकिन भाई हिला माना करने लगता है हजरत क्या करो, मेरी शादी हो गई है, एक दो बच्चे हो गए हैं, अगर मैं अभी नहीं कमाऊंगा मेरे बच्चे की देख रेख कौन करेगा, मेरी बीवी की देख रेख कौन करेगा, घर में पूरे माँ बाप है उनको कमाते कौन खिलाएगा। उस वक्त वो नौजवान कहता है, वो भाई कहता है, वो नौजवान कहता है वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह जरूर नमाज पढ़ेंगे। यानी बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके शादी के बाद तक आपने हिला माना करते रहा। आखिरकार कुछ दिनों के बाद जब आपके घरों में अल्लाह की रहमत आ जाती है, अल्लाह आपको एक बेटी दे दिया या दो बेटी दे दिया, औलाद हो गए, उसके बाद आपको टेंशन रहता है, वो को अल्लाह ताला ने एक औलाद दिया है, यानी वो बेटी के शक्ल में दिया है, हालांकि वो खुदा की रहमत है, लेकिन उसकी शादी करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं बेटी की शादी नहीं करूंगा, हो सके मेरी बेटी घर से कोई गलत कदम उठा ले, हो सके कोई गलत काम कर ले, जिसके वजह से समाज में हमें चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कोई वजह से मेरी बेटी कोई गलत कदम उठा ले, समाज में कैसे चलूंगा, लोग कहेगा फला की बेटी थी किसी के घर चले गई, फला की बेटी थी अपने घर से भाग गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बेटी के चक्कर में हमने घरों को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया, सबको छोड़ के परदेश चला गया, इसलिए कमाऊंगा पैसा जमा कर अपनी बेटी की शादी करा दूंगा। ये नियत होता हर इंसान का, ये सोच फिक्र होता हर इंसान का। जब उस वक्त भी आपसे आलिम दीन कहेंगे बाबू अब तो नमाज पढ़ो, भैया अब तो नमाज पढ़ो, मेरे दोस्त अब तो नमाज पढ़ो, उस वक्त वो कहते हैं हजरत क्या करूं, जवान बेटी घर में है, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो यकीनन मेरी बेटी की शादी कौन करेगा। आजकल का दौर है, दुनिया में कोई इंसान किसी को 1 रुपया नहीं देता है, अगर किसी से मांगा भी जाए उनके पास पैसा है लेकिन देने से इनकार कर देता हो। हजरत में करूं तो क्या करूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त भी आपने नमाज ना पढ़ा, जब बुढ़ापे के आलम में आ गए, आने के बाद फिर हजरत आपसे कहे हजरत आप तो नमाज पढ़ो, मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे यार अब तो नमाज पढ़ो। उस वक्त कहना हजरत क्या करूं, अभी तो मेरा पाँव में दर्द है, मेरा टांग में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर चकरा रहा है, यानी थोड़ा चलता हूँ पूरा थक जाता हूँ, जिसकी वजह से बैठना पड़ता है। हजरत क्या करूं, उठ नहीं पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ। मालूम क्या चला, वो इंसान जवानी से बचपना से लेके जवानी तक, जवानी से लेके दहलीज तक, दहलीज से लेके बुढ़ापा तक हमेशा उन्होंने इनकार करता रहा। आखिरकार आखिर वक्त में जब वक्त आ गया है नमाज पढ़ने का, जब उन्होंने कमा के अपने खानदान का शादी करा दिया, बेटा हो बेटी हो सबकी आपने शादी करा दिया, उसके बाद फिर जब आपसे कहा गया कि आप नमाज पढ़ो, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ताला उन बूढ़ों से इम्तिहान लेता है, उन बुढ़ों से इम्तिहान लेता है। एक बूढ़े तुमको बचपन में कहा गया नमाज पढ़ो, लेकिन तुमने ना पढ़ा, जवानी की आदत आ गया, अब तो नमाज पढ़ो, लेकिन तुमने नमाज ना पढ़ा, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद भी आलिम दीन आपसे कहे कि तुम नमाज पढ़ो, उस वक्त भी तुमने बहाना कर दिया। लो आप तो बूढ़े हो चुके हो, बुढ़ापे के आलम में अगर कोई आलिम दीन आपसे कहता है कि तुम नमाज पढ़ो, लेकिन उस वक्त आप कहते हो मेरा टांग में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे बहुत सारे तकलीफात है। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व तआला बुढ़ापे की उम्र में उस इंसान से अल्लाह इम्तिहान लेता है। इम्तिहान ये लेता है बचपन से तुमने इनकार करते रहा, बचपन से ही लापाना करते रहा, आज मैं तुमको बीमारी दे देता हूँ। अगर कोई कहेगा नमाज पढ़ो तो तुम कहना मेरा पाँव में दर्द है, मेरा टांग में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरा सर चकरा रहा है, ताकि इसी बीमारी के उलझन में तुम नमाज को छोड़ दो, शैतान को कामयाब कर दो, जहन्नम को
खरीद लो। ये फैसला है, क्योंकि बचपन से लेकर 55 तक हमने इनकार करते रहा, वक्त नहीं है। लेकिन जब वक्त आ गया नमाज पढ़ने का, बुढ़ापे के आलम में, अब बुढ़ापे के आलम में कहा जाता कि जब आपकी बेटी की शादी हो गई, बेटा का शादी हो गया, तो आप हर चीज से आजाद हो गए। जब हर चीज से आजाद हो गए तो हमको तो मस्जिद पकड़ लेना चाहिए, हमको तो खुदा के राह में हमको चले जाना चाहिए, अपने सर को खुदा के लिए वक्फ कर देना चाहिए। लेकिन अभी मैं देख रहा मीरपुर में तकरीबन आपके मोहल्ला में 400 घर है। मेरे ख्याल से 400 घर में 100 को जरूर बुढ़ा होगा नहीं होगा? तो बोलिए भाई, हाँ होगा। बुढ़े कहेंगे, बुढ़ा नहीं कहेंगे, जरूर 100 को बूढ़े होंगे वो। जाहिर सी बात, अगर 100 बूढ़ा अपने अपने घर से आके मस्जिद में नमाज पढ़ना शुरू कर दे, क्या अल्लाह ताला उससे राजी नहीं होगा? जरूर होगा। अल्लाह ताला का फरमान है, क्या फरमान है? एक दौर आएगा जिस वक्त, समझिए, एक दौर आएगा जिस वक्त सूरज यानी अभी पूरब से उगता है, लेकिन एक दौर आएगा उस वक्त पूरब से पश्चिम, पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से सूरज निकलेगा। समझ जाना कि कयामत की घड़ी शुरू हो गई। मालूम क्या चला? तौबा का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। हम कितनों गुनाह कर ले, खुदा की कसम सिद्ध के दिल से तौबा कर लेते हैं, खुदा से इनकार कर लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद से नमाज भी पढ़ूंगा, तेरे कौल पे चलूंगा। खुदा की कसम अल्लाह उनके हर गुनाह को माफ फरमा दे। इसलिए जितने मेरे बूढ़े चाचा हैं, पहले उनको मैं कह रहा हूं, खुदा दुनिया में मालो इज्जत, दौलत, रुपया, पैसा कोई आपके साथ नहीं है, कोई खानदान नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जितने मेरे बूढ़े चाचा हैं, दादा हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, खुदा की कसम नमाज आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। जिस दिन पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से सूरज निकलेंगे, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कितनों कुरान खानी कीजिए, फातिहा खानी कीजिए, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कीजिए, जलसा कीजिए, जुलूस कीजिए, कुरान पढ़ाइए, कोई फायदा नहीं। बल्कि क्योंकि सूरज कयामत की निशानी जाहिर हो गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कहने का मकसद ये है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। हमें चाहिए तौबा करके खुदा के राह में अपने सर को झुका दे। खुदा की कसम अल्लाह मेरी आपकी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए तमाम बूढ़े दादा चाचाओं से मेरी गुजारिश है, खुदा अब तो बहाना मत कीजिए, अब तो बहाना मत कीजिए। अभी से आज सिद्ध के दिल से तौबा कीजिए और आज से आप असर से नमाज शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मेंबर पे मैं चढ़ के बोलता हूँ, मस्जिद के अंदर, ये कुरान के अंदर है, मानना तो सबको है, ये कुरान के अंदर है। अगर कोई इंसान मस्जिद में जाके, वो भी जुमे के दिन, मस्जिद में जाके जुमे के दिन अगर वो इकरार कर लेता है, तौबा कर लेता है, दिल में ठान लेता है, या अल्लाह दुनिया में मैंने चोरी भी किया था, चमारी भी किया था, ज़िनाकारी भी किया था, शराब भी पिया था, यानी दुनिया में जितनी बुराइयां है मैंने किया था, मेरा ऐसा गुनहगार दुनिया में कोई नहीं है, या अल्लाह मैं जुमा के दिन मैं आज तौबा करता हूँ, मेरी गुनाह को माफ फरमा दे। आज के बाद से नमाज पढ़ूंगा, तेरे रसूल के कहने पर मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा। खुदा की कसम अल्लाह आपकी गुनाह माफ करेगा, आपकी दर्जात बुलंद फरमा देगा। ये कुरान और हदीस का साबित है। इसलिए मस्जिद में अगर सिद्ध के दिल से हम तौबा कर ले तो खुदा की कसम अल्लाह आपकी तौबा भी सुनेगा, साथ साथ आपकी गुनाह भी कबूल, गुनाह को माफ फरमाएगा, आपकी दर्जात को बुलंद व आला फरमा देगा। तौबा के बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं, ये तौबा एक ऐसा चीज है, तौबा एक ऐसी निअमत है। अगर कोई इंसान तौबा करता है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूं, भले हम 99 आदमी का कातिल क्यों ना हो, अगर हमने कोई गुनाह किया दुनिया में
अगर सिद्क दिल से वो इंसान तौबा कर लेता है, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद से मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, तुझसे तेरे नबी से मैं राजी हूँ, तुझसे तेरे नबी के कहने पर अपनी जिंदगी गुजारूंगा, यकीनन वो इंसान तौबा करके जब नमाजी हो जाता है, नमाज पढ़ता है, ईमान की हिफाजत करता है, अपने आप को खुदा की राह में वक्फ कर देता है, अल्लाह ताला भी फरमाता है जब मैंने तेरे गुनाह को माफ फरमा दिया, ऐसा पाक कर दिया जैसे कोई बच्चा अभी माँ के कोख से पैदा हुआ। अब बताइए, अगर कोई इंसान अगर अभी माँ के पेट से पैदा हो, क्या उससे कोई गुनाह हो सकता है? नहीं, उससे कोई गुनाह नहीं है। उसी तरह तौबा करने वाले के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, जो इंसान तौबा कर लेता है, तौबा करने के वक्त में मैं उनकी तमाम खताओं को माफ फरमा देता हूँ, उनकी गुनाह को माफ फरमा देता हूँ, मिसले ऐसा है जैसा वो अभी माँ का पेट से पैदा हुआ है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा, तकरीबन 1 साल से ज्यादा हमको हो गया, 1 साल 2-3 माह हमको हो गया, लेकिन जो मेरे पास 10-12 मुक्तदी थे, नमाजी थे, वही 10-12 ही है। फजर में 15-16 हो जाते हैं, लेकिन 20 प्लस नहीं हो पा रहे। और देखता हूं तकरीबन गांव में 400 घर की आबादी है, लेकिन हर घर से एक ही बूढ़े को निकाला जाए, किसी में बूढ़ा है किसी में नहीं है। तकरीबन 100 निकलना चाहिए, से कम तो नहीं निकलेगा। 100 प्लस हो जाए, लेकिन 100 से कम होने वाला नहीं है। इसलिए चाचा दादा आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोग नमाज खुदा के लिए शुरू कर दें, क्योंकि जहन्नम के बारे में उलमा किराम फरमाते हैं कि जहन्नम एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान को तबाह बर्बाद ही लिखा हुआ। और जहन्नम की बात अगर मैं कर दूं तो दुनिया में जो आपने आग देखा ना, वो आग आपको कई रंग में नजर आएंगे, कई रंगों में नजर आएंगे। आग कभी आपने पीला भी देखा होगा, लाल भी देखा होगा, नीला भी देखा होगा, हरे कलर के भी देखे होंगे। यानी जहां पर जैसा इस्तेमाल होता है आग, वहां पर वैसा रंग चेंज कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये दुनिया की आग है, लेकिन जहन्नम की आग के बारे में हम बात करें, जहन्नम के आग के बारे में उलमा किराम फरमाते हैं, जहन्नम में जो आग है, नहीं वो गोरा है, नहीं वो लाल है, नहीं वो पीला है, नहीं वो सफेद है, नहीं वो नीला है, बल्कि जहन्नम की आग वो सियाह है, वो काली है। काली इसलिए रखा गया, अगर कोई इंसान को जहन्नम में डाला जाएगा, उसको ये यकीन हो, उसको ये भरोसा हो, वो ये सोचे कि जहन्नम में मैं तरोताना अकेला हूँ। लेकिन बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, उसे एहसास हो अगर दुनिया में मैं एक काम करता तो जहन्नम में मुझे अकेला नहीं रहना पड़ता। इसलिए आपको काला बनाया गया, काली बनाई गई है, ताकि इंसान को एहसास हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जहन्नम में तकरीबन 3 हिस्स आदमी जाएंगे। एक ही हिस्स होगा जो जन्नती होगा, और जहन्नम में ज्यादातर औरतें होंगे, क्योंकि औरतें आजकल आपके नबी ने फरमा दिया एक दौर आने वाला है जो इंसान एक इंसान को देखेगा जैसे दुनिया में कुछ जानवर साथ में रहते हैं, वैसे आदम की औलाद, आदम के जो औलाद है वो दुनिया में वैसे होंगे। मालूम क्या चला, जिस तरह जानवर आपस में रहते हैं खुल्लम खुल्ला, वैसे आदम का बेटा बेटी रहेंगे, यानी इंसान रहेगा। मालूम क्या चला, ये भी कयामत की निशानी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम देखते हैं मेरी बेटी है, उनके सर में आंचल नहीं है, मेरी बेटी है पर्दे में नहीं रहती है, मेरी बेटी है घर से बाहर कदम कर देती है, लेकिन बाप होने के नाते अपनी बेटी को नहीं समझाता है, भाई होने के नाते अपनी बाप को नहीं समझाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, शौहर होने के नाते अपनी बीवी को नहीं समझाता है। मालूम क्या चला, ये कयामत की निशानी है। अगर यकीनन अगर किसी की बहन बह जाए, किसी की बेटी बह जाए, किसी की बीवी बह जाए, सबसे पहले उनके वारिसीन से पूछा जाएगा, उनके खानदान से पूछा जाएगा, उनके बाप से पूछा जाएगा, उनके भाई से पूछा
پوچھا جائے گا ہم نے تجھے ایک بہن دیا تھا, کلی جیسی بہن دیا تھا, لیکن تم نے بہن کی پرورش کیوں نہیں کیا, بہن کو پردے میں کیوں نہیں رکھا, ہم نے تجھے بیوی دیا تھا اپنی بیوی کی پرورش کیوں نہیں کیا, ہم نے تجھے بیٹی دیا تھا اپنی بیٹی کے دیکھ ریکھ کیوں نہیں کیا. عزیزان ملت اسلامیہ, جو انسان اپنے اولاد کی, اپنی بیٹی کی, اپنے خاندان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کا بھی حفاظت فرمائے گا. برادر ملت اسلام, یہ بھی قیامت کی نشانی. لیکن آج کل ہم لوگ دیکھتے کیا ہے, میری بیٹی میرے نظر کے سامنے سے نکلتی ہے, غیروں کے میلے میں جمع ہو جاتی ہے, غیروں کے تماشا اڈوں میں چلے جاتی ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں, میری بیوی بھی دیکھتی ہے, میرے نظر کے سامنے میری بہن جا رہی ہے, میرے نظر کے سامنے میری بیٹی جا رہی ہے, میرے نظر کے سامنے میری بیٹی جا رہی, بہن جا رہی, ماں جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. خدا کی قسم, جس نے اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کیا, خدا ان کا حفاظت کرے گا, اس کا مقام اعلیٰ فرما دے گا. لیکن آج کل ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہائے دولت, ہائے دولت. دولت اللہ تعالیٰ نے بہت ایسے بادشاہوں کو دیا, دولت صداد کو بھی دیا, نمرود کو بھی دیا, فرعون کو بھی دیا. اتنے دولت تھے, اکیلا ایک گھر کا نہیں بلکہ کئی ملک کے بادشاہ تھے, کئی ملک کے بادشاہ تھے. آپ بتائیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دولت دیا, لیکن دولت کے نشے میں گھمنڈ میں آ گیا. گھمنڈ میں آنے کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا, ہم ہی خدا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ نتیجہ کیا ہے؟ اگر وہ غریب ہوتا, اگر وہ مسکین ہوتا, اگر وہ یتیم ہوتا, خدا کی قسم وہ خدا کو کبھی نہیں بھولتا. لیکن دولت کے نشے میں اپنے گھر کو بھول گیا, اپنے خاندان کو بھولا, اپنے بیٹی کو بھولا, اپنے سماج کو بھولا. ہائے دولت, ہائے دولت. جانے کے بعد جب بھی وہ اٹھتا ہے دولت کے بارے میں سوچتا ہے, جب بھی بستر سے اٹھا دولت کے بارے میں سوچتا ہے. نہیں دیکھا کہ میری بیٹی کہاں ہے, میری بہن کہاں ہے, میری بیوی کہاں ہے. یقیناً جس نے دنیا میں اپنے خاندان کی حفاظت کیا, خدا کی قسم, خدا کی قسم, اس نے بہت بڑا مرتبہ پا لیا. جس نے اپنے خاندان کا حفاظت کیا, اپنی ماں کی, بیٹی کی, بہن کی, بہو کی, جس نے حفاظت کیا, خدا کی قسم اس کے طرح دنیا میں نیک کام کوئی نہیں ہو سکتا ہے, نیک انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے خدا را دنیا میں چھوٹی چھوٹی بہت ایسی گناہ ہے جو ہماری بیٹی کرتی ہے, ہماری بہن کرتی ہے, ہماری سماج کرتی ہے. ہر ماں باپ کو چاہیے, ہر بھائی کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا, اپنی بہن کی, اپنی بیٹی کی حفاظت کرے. یقیناً اگر اس کی حفاظت میں وہ کامیاب ہو گیا, خدا کی قسم وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہے گا. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا, ایک دور آئے گا, ایک دور آئے گا جو ہر انسان مسلمان ہوگا, صرف مسلمان ہوگا, ایمان نہیں ہوگا. ایک دور ایسا آئے گا جو ہر انسان کہے گا ہم مسلمان ہیں. مسلمان کیا ہے؟ کیا گوشت بھات کھانا مسلمان ہے؟ پلا گوشت کھانا مسلمان ہے؟ نہیں نہیں, بلکہ مسلمان, نبی کونین نے فرمایا ایک دور آئے گا جو ہر انسان کہے گا میں مسلمان ہوں, لیکن ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا, اسے ایمان معلوم ہے کہ ایمان کیسے کہتے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے باپ دادا نے, جو آپ کے باپ دادا پردادا نے جو زندگی کو انہوں نے گزارا ہے, یقیناً وہی مسلمان تھے, وہی ایمان والے تھے. اور آج دیکھا جاتا ہے مسلمان ہوتا ہے لیکن اپنے ایمان کو بیچتا ہوا نظر آ رہا. کسی کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو دے کر ہم نے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا. آپ کے زمانے میں, آپ کے باپ دادا کے زمانے میں گھر گھر فاتحہ ہوتا تھا, گھر گھر میلاد ہوتا تھا, گھر گھر نبی کی بات میں سجتی تھی. لیکن آج دیکھ لیجئے گھر گھر سے بیکاٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جو جن کے باپ دادا کلمہ پڑھتے تھے, درود پڑھتے تھے, مصطفیٰ پہ سلام بھیجتے تھے, میلاد النبی مناتے تھے, آج انہی کا بیٹا ہو, انہی کا پوتا ہو, وہ کہتا ہے سلام پڑھنا شرک ہے, فاتحہ کرنا حرام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, مسلمان تو ہے لیکن ایمان ان سے خالی ہے. اس لیے ایمان, مسلمان کو نبی نے فرما دیا ایک دور آئے گا جو سب کہے گا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہیں, لیکن مسلمان نام کے لیے ہوگا. لیکن ایمان کے بارے میں پوچھا جائے
तो उसके अंदर कोई ईमान की दलील नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमें मुसलमान भी होना है, साथ साथ पहले हमको अपने ईमान की हिफाजत करना है। यकीनन ईमान की हिफाजत कर लिए हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए इन सबों पर हम गौर फिक्र करें। और बिलखुसूस ये नमाज के मुताबिक जो मैंने अभी कहा, ये नमाज किसी भी कीमत पे माफ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चाहता है। जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से आज तक लोग आते गए जाते रहे, तो हम किस खेत की मूली है? क्या हमें नहीं मरनी है? हमको भी मरना है, लेकिन उसकी तैयारियां हम कैसे करें? औलाद हम पैदा कर दिए, औलाद की तैयारियां हम करते हैं, पैदा हम किए, जमीन हम खरीदते हैं, उनके लिए घर हम बनाते हैं, उनकी दुल्हन के लिए रहने की व्यवस्था हम करते हैं। मालूम क्या चला, जब एक औलाद हमने पैदा किया, उनकी रहने सहने की व्यवस्था हम करते हैं, लेकिन जिस घर में हमको रहना है उसकी हमने क्या तैयारियां? कोई तैयारियां हमने नहीं किया। खुदारा इस बात को कभी आप अकेले में सोचिए और देखिए तो उस वक्त का आपका दिमाग क्या कहता है। वाकई में जिसने नबी के कहने पर अपनी जिंदगी गुजारा वही इंसान कामयाब है। आज होता क्या है, एक भाई दूसरे भाई से एक एक बित्ता जमीन के लिए लड़ना शुरू कर देता है, एक भाई दूसरे भाई का सर फोड़ देता है, एक भाई दूसरे भाई को बर्बाद करना चाहता है। मेरा जाने मिल्लत इस्लामिया वो किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। याद कीजिए, जिस वक्त आप मर जाएंगे वही औलाद होगा, कहेगा जितना जल्द हो सके मार्केट से कफन लाया जाए, बाप को पैदा कैसे कब्रिस्तान का हवाले किया जाए। बताइए उस वक्त आपका कौन होगा? उस वक्त कौन होगा? और यही बेटा है जिसके लिए आपने मेहनतों में शक्कत की, मेहनतों मुशक्कत किया, वो बेटा मरने के बाद खुदा की कसम फातिहा तक नहीं पड़ेगा कब्रिस्तान में जाके, वो भी काम मौलवी साहब से करवाएगा। जमीन जायदाद लेगा बेटा, घर मकान लेगा बेटा, लेकिन फातिहा नियाज किसी और से कराएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उलमाए किराम फरमाते हैं, सबसे पहला हुकूम उनकी औलाद का है, अपने माँ बाप के नाम से इशारो सवाब करे, उसके बाद किसी के चौखट में जाके भीख मांगे। लेकिन मरने के बाद हम भीख मांगना शुरू कर देते हैं। जिस बाप ने मेरे लिए भीख मांगा, पूरी जिंदगी मेरे लिए वक्फ कर दिया, लेकिन हम उनके लिए क्या किए? दर बदर भागते हैं, ठोकर खाते हैं और बाप के लिए भीख मांगते हैं। शर्म आने चाहिए हमको कि जिस औलाद के लिए हमने इतना किया वो बेटा मेरे लिए कुछ नहीं करता है, फकत वो वही करता है, जिंदा है, एक वक्त खाना खिलाएगा, मरने के बाद आपके नामे अवाम के लिए इशारो सवाब भी नहीं करेगा। खुदा हम तो यही कहेंगे, दुनिया में जो आप करेंगे वही आपके साथ जाएगा। दुनिया में जो भी आप काम करेंगे वही आपके साथ जाएगा, वही आपको कामयाब करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त नहीं है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, मेरे जितने दादा चाचा हैं और नौजवान भाई बूढ़े बुजुर्ग, सबसे मेरी गुजारिश है, खुदारा वक्त निकालिए, खुदारा आप लोग अल्लाह के लिए सर को झुकाइए। ये चीज आपको कामयाब देने वाली है, यही आपको मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाला है। इसलिए खुदा के घरों में आप अपने सर को झुका दीजिए, आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और कब्र में कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होता हुआ नजर आएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गुजारिश है मेरी आप लोगों से, मेरा काम है कहना, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो हम तलवार नहीं चलाएंगे, हम बल्लम फांसा नहीं चलाएंगे, लेकिन कभी अकेला में ये सोचिएगा कि यकीनन जो बयानात हमने सुना, क्या उसमें कुछ झूठापन है या नहीं? अल्लाह के जितने सहाबा थे, नबी के जितने सहाबा थे, वो नबी के जितने सहाबा थे, कोई भी एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ते थे। जाहिर सी बात है, जो ईमान के वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, लेकिन फर्क है वो नेक है, हम नेक नहीं है। अब हमें तो नेक बनना पड़ेगा। इंसान है, कोई पीर बनता है, कोई जानवर नहीं है, वो भी इंसान है, कोई जिन्नात नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, बल्कि वो भी इंसान है। आप जैसा करतब करेंगे, जैसा काम करेंगे, यकीनन खुदा उसी तरह आपके साथ सलूक करेगा, वैसे आपके साथ व्यवहार होगा। मालूम क्या चला, अगर दुनिया में नेक करेंगे उसका बदला हमको नेकी मिलेगा, अगर दुनिया में हम बुरा करेंगे उसका बदला हमको बुराई दिया जाएगा। बिरादर मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए खुदा सबसे मेरी गुजारिश,
मरना सबको। चंद मिनट के लिए आप कभी अकेला में सोचिएगा, हम तो आए हैं लेकिन जाना है कब्र की मंजिल में रहना है। वहां पर मेरे साथ क्या हश्र होगा, मैदान में समय जब निशान अमल पाला जाएगा उस वक्त मेरा हाल क्या होगा। यकीनन गौर फिक्र करे और खुदा को याद करे, या अल्लाह तू मुझसे क्यों नाराज हो गया है, हमसे राजी हो जाए और हमको तू अपने चौखट पे बुला ले। इस इरादे से आप दुआ करें, खुदा की कसम अल्लाह ताला आप पर नजर डालेगा और आपको अपने घर के करीब खींचेगा। बिरादर मिल्लत इस्लाम, वक्त नहीं है, इसलिए गुजारिश करूंगा कि आप हजरात थोड़ा सा वक्त निकालिए और खुदा के घरों में अपने सर को झुकाइए। आप काम कीजिए, मना नहीं, जो काम करते हैं वो काम करें। अगर जोहर की नमाज छूट गई, असर की नमाज छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐशा में पढ़ लीजिए, फजर में पढ़ लीजिए, लेकिन दो ही वक्त तो आइए, फजर और ऐशा तो आइए, 3 वक्त छूटेगा उसका कज़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर ये शुरू करेंगे, खुदा अगर चाहेगा तो एक भी वक्त की नमाज आपका कज़ा नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। इसीलिए गुजारिश है, अपील है सबसे, आप लोग खुदारा नमाज को छोड़िए मत। दुनिया में अगर कहीं नाच गाने की डरावा होता है, हम लोग कसीर तादाद में दौड़ने लगते हैं, क्योंकि वहां पर शैतान आपको खींचता है। चलो, ताकि शैतान कामयाब उसी में होगा जब आपको बहकाएगा। जहां पर नेकी की काम हो, शैतान आपको रोकेगा, पैरा डालेगा, आपको नींद में मशगूल करेगा, आपके बदन में तेल का मालिश करेगा ताकि हम इनको मालिश करें, इनको बहकाए। अगर ये सो जाए, एक वक्त की नमाज छोड़ देगा तो हम कामयाब हो जाएंगे, ये इंसान जामिल हो जाएगा। शैतान सबके पीछे पड़ा हुआ है, बस शैतान को झिझोड़ के फेंकने की जरूरत है और अल्लाह से कहिए, या अल्लाह मुझसे तू क्यों नाराज है, अपने घर में बुला ले। हमको भी शौक है कि हम भी सजदा करें, खुदा की कसम ये शौक से अगर दुआ करेंगे, खुदा आपकी दुआ कबूल करेगा और आपको अपने घर के करीब करता हुआ नजर आएगा।